We will start today's class. Yes. So this is the assignment section. I'm going to the assignment section. And this is the assignment which was due yesterday at 7 p.m. Can you see this assignment? Please say yes or no. आपको दिख रहा है assignment chapter 6 NCERT? Can you see this? Yes, sir. Everyone? Okay. So now the Kana Masti, he has viewed the assignment, लेकिन turn in नहीं हुआ है, right? गरिमा ने view किया है, लेकिन submit नहीं किया है. कामनी not turn in. सनी not turn in. स्वस्तिका view किया है. शिवम वर्मा view किया है. गार्गी यादव view किया है. This and when does this assignment was given? This assignment was due yesterday. This assignment was given. मैं आपको दिखा देता हूँ. When it was given, students, can you tell me? कोई बताएगा मुझे? It was given on 26th of June. So 26, 27, 28, 29, 30, right? And today is 1st. Can you see this assignment, everyone? Please say yes or no, students. Yes, sir. Okay, so this assignment is still not being submitted, right? So it's not feasible for me to remind you again and again. And how many questions was there, Justy? Can you see the number of questions? Okay, can you tell me how many questions were there? What is total number of questions, please? 7. Only the 7 questions were there, right? 7 questions were there only. So this is again last time I'm telling you, I will not give you any reminder further, right? So this is very less assignments now because you have not submitted this assignment. So I will give you today 5 assignments. मैं आपको दूंगा आज. I will share 5 assignments and you will submit those assignments within 1 day. Because if I am giving you the enough time, then you are not capable to submit this, right? So I will give you the more assignment as a result of this, right? No issue. Fair enough. The first question was the group the following as nitrogenous bases and nucleosides. This was the first question. So if I say adenine, what is adenine? Nitrogen base है, ठीक है? इसमें cytidine, thymine, guanosine and cytosine. See, guanosine and the cytosine, ये दो क्या हैं? These two are क्या है बेटा ये? What is guanosine? Nucleoside. न्यूक्लियोसाइड है guanosine, अगर आप देखोगे तो, ठीक है. एंड इसमें जो है साइटिडिन, ये वाला साइटिडिन जो है ये है न्यूक्लियोसाइड. इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर दी नाइट्रोजन बेसिस है. वेरी सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन इज इफ आ DNA strand has 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine in the DNA. This question very easy question था. 30%. और कितना परसेंट बेटा? 30%. Yes, 30%. कैसे सॉल्व किया हमने? साइटोसिन इज गिवन 20% है. सो नाउ साइटोसिन विल पेयर अप विद, किसके साथ पेयर अप होता है साइटोसिन? C विल पेयर अप विद G के साथ पेयर अप होगा. तो G इज ऑल्सो 20%. दोनों कितना हो गया हमारा? इसको 40 मान लेते हैं दोनों को एज पर द चार्ज ऑफ रूल. सो टोटल अमाउंट जो होता है दैट इज 100 में से 40 गया, दैट विल बी 60. सो 60 जो है दैट इज एडेनिन एंड थाइमिन. तो 60 होगा तो एडेनिन का अमाउंट कितना होगा? 30%. चार्ज ऑफ रूल. इट वाज सिंपल क्वेश्चन. इट कितना टाइम लगेगा करने में? 1 मिनट लगेगा आपको करने में. थर्ड क्वेश्चन, if the sequence of one strand of DNA is written as follows, fifth end के ऊपर है A, T, G, C and so on. If you see this, can you, is it visible to you? ये visible है सबको? Yes, sir. Yeah, this is the, if the sequence of one strand of DNA is written as follows, write down the sequence of the complementary strand in 5 feet to 3 feet direction. हमने इसका complementary strand बनाना है in the 5 feet to, तो 5 feet कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी दिस डायरेक्शन में.
So G is over here. G की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? G pair up with C pair up with G. So here it will be fifth hand यहाँ होगा इसका this side. ठीक है? I'm taking this third hand. ये third hand से start कर रहा हूँ यहाँ से. So here it is the C, तो यहाँ G आ जाएगा, then C, then A, then T, like this. बना लोगे आप आराम से? No issue in this question. कितना टाइम लगेगा करने में? 30 seconds. Fourth question was, is the sequence of the coding strand in our transcription unit is written as follows. Yes, this is the fourth question, very important question. Is written as follows. This is the sequence of coding strand, right? Coding strand का sequence. मुझे कोई जोर से बोलना जरा sequence है उसको fifth hand से start करके. A, speak louder please. कौन बोलो इसको यार? A T. A T. G C. हाँ. A T. Yes. Again G C. G C. Then A T. A T. G C. G C. That's it. Sir, 8 times. Sir, 8 times A T G C. ऐसे ही पूरा ये sequence. Yes, sir. Okay. So this is the fifth hand is given over here, and the third hand is given over here, so on. ऐसे आगे आप अपने आप बना लीजिएगा. I'm just telling you. So this is the coding stand. Right now the question has been asked. Write down the sequence of mRNA. अब इसका हमने mRNA बनाना है. ये coding stand है. ठीक है? तो coding का पहले हम क्या बनाएंगे? We need to make a coding because we know that coding का complementary नहीं होगा, तो we need to इसका हमने DNA का स्टैंड बनाना, टेम्पलेट स्टैंड. टेम्पलेट स्टैंड क्या बन जाएगा इसका? A T A G का C G T A C G T A C G and so on. So this will be the template stand. Direction आ जाएगी 3 feet to 5 feet direction. Now the question mRNA, it has been asked that mRNA क्या बनेगा? हम इसका जो है, this is the template stand. This is the template stand. So इसका हमने अब RNA बनाना है इसका, ठीक है? तो यहाँ से RNA बनेगा आपका. देखिए आपका ये यहाँ पे जो है आपका G है, यहाँ पे आपका T है, तो आप देखिए क्या बनेगा इसका RNA का. इसका RNA बनेगा ना, ये से नीचे लिख देता हूँ यहीं पर ही. Here RNA molecule will be A. यहाँ पे T होगा तो यहाँ पे U आ जाएगा, because RNA will have uracil. G C A U G C A U G and C. ठीक है? तो आपको ये लग रहा हो, ये देखिए ये this is the only change because हमें बोर्ड नहीं दिख रहा है. Pardon? सर अच्छा, आपको स्क्रीन बोर्ड दिख रही है, बोर्ड नहीं दिख रहा है. करो दिखेगा. क्या नहीं दिख रहा क्या आपको किसी को भी? There will Just- be you just Yes, pin sir, on. हो गया. हाँ, okay. So here जो A will अगर DNA होगा तो A का complement of element will be thymine, but in the RNA thymine will be replaced with uracil. हमने thymine को replace कर दिया uracil से. So this is your RNA molecule. This is the RNA molecule. This has been asked 5th feet to 3rd feet. This is the direction of RNA molecule. Right? ये आपका RNA molecule है, इस तरह से हो जाएगा आपका ये. कहाँ गया आपकी assignment? What? Right? Is it okay this question? Yes, sir. Okay, I have missed the assignment. मेरा कहाँ चला गया assignment? Again, I'm opening it. Assignment. Okay. Can you see the assignment? My assignment is visible now? Yes, sir. Visual. And my video is also visible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So this fourth question over. Right? Fifth question. Which following of the DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication? I need not. I think मुझे इसका explain करने की जरूरत नहीं है. इसको explain कर चुका हूँ मैं कई बार. Depending upon the chemical nature of the template DNA or RNA, the nature of the nucleic acid synthesized from it,
लिस्ट द टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज है उसका जो टाइप है, क्या टाइप होगा न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज का टाइप? या कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट डीएनए और आरएनए, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज इट। डीएनए और आरएनए, लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक पॉलीमरेजेस। तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक, और दूसरा आपका दैट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंड आरएनए पॉलीमरेजेस जो 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। और डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन ऑफ 200 बेस पेयर्स की पॉलीमराइजेशन करता है इनटू द डीएनए विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो हियर यू विल राइट 4 टाइप ऑफ एंजाइम्स आप लिखोगे। डीएनए पॉलीमरेज जो कि नया डीएनए बनाता है, एंड 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3, and depending upon the RNA molecule synthesized by them। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 7th question, how did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is the genetic material? कैसे differentiate किया? by 7th question, by using 32 phosphorus and 35 sulfur को यूज करके they have differentiate किया था उन्होंने। तो you need to explain that, experiment को explain करना आपने, right? This was the assignment which was due yesterday, right? Is there any doubt in this assignment? कोई डाउट है इस असाइनमेंट में आपको, किसी को? No, sir. So then I'm not going to accept this late, Latifi. You should be very punctual please in your submission. Okay, so now in your this quarterly exams till yesterday, कल तक जो हमने पढ़ा है वहां तक आपको जो है वो एग्जाम में आएगा, राइट? ठीक है, is it okay? Okay, now can you see the green board? Green board is visible to you? Green board, can you see the green board, students? Yes, sir. Right, so thank you. Who is answering this? 100 times I need to ask the same question, then you will give the reply. That's good, great. Good. Now, so we will continue with the next, that is the genetic code. Genetic code तक हम आगे continue करेंगे इसी को, इस chapter को ही हम we will continue with this. Today also I will give you the assignment. आपको एक 5 assignments मिलेंगी practice के लिए for the your quarterly exams के लिए. So today I will upload that in the afternoon तक upload कर दूंगा. So please go through those assignment and इस assignment को complete करके आप मुझे भेज दीजिएगा. So the next topic after the transcription which I am going to take is the genetic code. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे genetic code, right? So today we will understand what is this genetic code, ये क्या है, genetic code क्या है, and what are the features of the genetic code के जो features हैं वो क्या हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में। See, हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल है, अज्यूम करते हैं दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, ओके, ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है। नाउ इफ यू सी ऑन दिस डीएनए मॉलिक्यूल देयर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, लाइक दिस, ओके। आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते हैं बिटवीन दी बेस पेयर्स के बीच में। So we know that if this is the template stand for the RNA, and RNA molecule will be synthesized, तो यहाँ पे क्या बनेगा? This is the RNA molecule. I am assuming it. This is the any RNA molecule which will be क्या होगा? Transcription होगी यहाँ पर, और ये DNA क्या करेगा? This DNA is going to form the RNA molecule. This DNA will synthesize RNA molecule. This we have studied. हमने पढ़ा है ये. Isn't it? Now, this RNA molecule which will be synthesized, कैसे synthesize होगा? यहाँ पर हम कह देंगे यहाँ पे जो है it will be A, U, G, C, A, U, G, C, A, U, and then G and C.
दिस इज आरएनए मॉलिक्यूल, सिंपल, बिकॉज दिस इज अ टेम्पलेट स्टैंड, हम टेम्पलेट स्टैंड बोल रहे हैं इसको हम 5 फीट टू 3 फीट, दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी आरएनए की। नाउ सी वी आर सेइंग दैट द इंफॉर्मेशन व्हिच इज देयर इन दी ऑन दी डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी, that information will be coded in the form of RNA molecule. ये जो इंफॉर्मेशन थी डीएनए के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिकोड हुई है इन दी फॉर्म ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं बताओ? आई एम सेइंग दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, that is decoded in the form of RNA molecule, whether it is messenger RNA, ribosomal RNA or transfer RNA. Am I right or wrong? Yes, sir. Right. Now, so these nitrogenous bases which are present on the DNA, which are going to decode to form the RNA molecule, ये जो nitrogen bases हैं which are present on the DNA molecule which will decode to form the RNA molecule, इनको क्या बोलेंगे हम? They are known as the genetic code. क्या बोलेंगे इनको हम? Genetic code. And the genetic code which will be transcribed on the RNA molecule, RNA molecule के ऊपर जो nitrogenous base आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? Genetic codon. CODON, codon, ठीक है? Genetic code and genetic codon. This is very important to understand the difference between the genetic code and genetic codon. So, what are genetic code? Genetic code are the sequence of nitrogenous bases which are present on the DNA molecule, or more specific, you can say the sequence of nitrogen bases which are present on the DNA molecule, which will further transcribe, जो बाद में जो है वो ट्रांसक्राइब होंगे आरएनए की फॉर्म में। दो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, दे आर नोन एज जेनेटिक कोड को बोलेंगे, एंड दे विल बी ट्रांसक्राइब्ड, ये ट्रांसक्राइब होंगे इन दी फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडॉन। सो ये जेनेटिक कोडॉन हो गए AUGC, ये क्या है? ये जेनेटिक कोडॉन है। ये TAGC, ये क्या है? ये आती जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड है, राइट? नाउ यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ा है पहले कि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, दे आर दी 20 अमीनो एसिड विच आर देयर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर इज दीज जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोडॉन है, इनका नेचर कैसा है, कैसे होते हैं ये? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। सो द जॉर्ज गैमो, he was a scientist, George Gamow, he suggested, उसने suggest किया और हम उसी की बात को मानते हैं, that these genetic code they are in triplet form, and so the genetic codon also in triplet. Triplet का मतलब क्या हुआ? TAC, this is one genetic code. AUG, triplet 3, this is one genetic codon. Similarly इसके आगे हम बात GTA, this is another genetic code. CAU, this is another genetic codon, ठीक है? CGT, इस तरह से। नेक्स्ट will be GCA. So George Gamow has suggested that the genetic code and genetic codon, they are triplet in nature. कैसे हैं ये? ट्रिपलेट है नेचर में, यानी कि जेनेटिक कोड जो है 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बनता है। सो द कोडॉन जो होगा वो भी किससे बनेगा? 3 नाइट्रोजन बेसिस से बनेगा। सो देयर आर, व्हेन वी टॉक अबाउट दी नाइट्रोजन बेसिस की जब हम बात करते हैं ऑन द डीएनए एंड इवन ऑन द आरएनए, सो वी आर हैविंग दी 4 टाइप्स ऑफ, हमारे पास क्या है? 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस हैं
डीएनए मतलब एटीजीसी की अगर बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स। प्यूरिन पिरिमिडिन को मिला करके जब हम बात करते हैं तो ऑन दी डीएनए एंड ऑन दी आरएनए के ऊपर। सो इफ आई एम अज्यूमिंग आरएनए मॉलिक्यूल, अगर हम अज्यूम करते हैं एक जेनेटिक कोडॉन की बात करूं यहां पर, सो इफ आई मेक दिस टाइप ऑफ 1 2 3 एंड 4, मैं कैसे सिंपल बनाता हूं। नाउ ऑन द आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है मेरे पास, आई एम राइटिंग हियर यू सी, यूरेसिल है, साइटोसिन है एंड ए जी। दिस साइड आल्सो आई विल राइट यू सी ए जी। दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, राइट? दिस नाउ व्हाट आई विल डू, I will combine these two, U and what I am doing, यहाँ पे हम एक U जो हम लगा देते हैं ट्रिपलेट, तो U, ये क्या हो गया यूरेसिल का। दिस इज दी one genetic codon which is present on the RNA molecule and this U जो है ये कोड करता है for phenylalanine, ये अमीनो एसिड, इसके लिए कोड कर रहा है ये यहाँ पर। नाउ हियर व्हाट आई शुड राइट, यहाँ पे क्या है आपका U, यहाँ पे क्या है हमारा C है या आप, तो यहाँ पे आ जाएगा U C U। सिमिलरली यहाँ पे U A U, then U G U या U G। So in this way we can make the all 64 codon जो है that can be made by this way which is given in NCERT, but we are not concerned with all those 64 codon से concern नहीं है, हम कुछ की बात करेंगे जो हमारे फीचर्स में आएंगे हमारे पास। So George Gamow has said that these genetic code they are triplet in nature, so the genetic codon also they are triplet in nature, so there will be total 64 codon है, लेकिन 64 में से only the 61 genetic codon they will code for 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। Only 61 will code for the अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे, तो बाकी 3 कहां गए? 3 will not code for any अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे वो, and those 3 are known as stop codon। 3 जो है वो क्या होंगे? They will be the stop codon। Stop codon mean they are not going to code for any amino acids, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, right? So now if you analyze this, अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो हम ये कहेंगे जैसे ये AUG है, जैसे इसको एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसको AUG, it will further translate होगा as a result of translation AUG it is going to make a amino acid which is known as methionine या मिथ्योनाइन। AUG जो है क्या बनाएगा? मिथ्योनाइन बनाएगा, मिथ्योनाइन। आर यू गेटिंग दिस? AUG, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं ये, इफ यू सी इन एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दे रखा है पूरा, प्रोलीन, सीराइन, फेनिलैलानाइन, वो पूरा चार्ट दे रखा है। आपको पूरा चार्ट याद नहीं करना है, आपको यू नीड नॉट टू लर्न दी कंप्लीट चार्ट, आपको लर्न नहीं करना है, यू नीड टू लर्न ओनली दी फ्यू अमीनो एसिड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको मैं। जैसे AUG, आई गिव द एग्जांपल, AUG किसको कोड करेगा? मिथ्योनाइन को कोड करेगा, किसमें? हमारे अंदर, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंदर इट विल कोड फॉर N-फॉर्माइल मिथ्योनाइन, N-फॉर्माइल। दिस इज नॉट गिवन एनसीईआरटी में नहीं रखा होगा। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये N-फॉर्माइल मिथ्योनाइन के लिए कोड करेगा। सिंपल है, दिस इज द वन यू नीड टू लर्न, डोंट वरी, ठीक है? सो द फर्स्ट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड according to the George Gamow, these genetic code and genetic codon they are triplet in nature। ट्रिपलेट है तो there will total 64 codon होते हैं, out of these 64 only 61 कोड कर रहे हैं। 61 किसको कोड करेंगे? 20 टोटल अमीनो एसिड 20 है हमारी बॉडी के अंदर, they will code for the 20 अमीनो एसिड्स and the 3 are the stop codon। स्टॉप कोडॉन 3 जो है, इट मीन दे विल नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये स्टॉप कोडॉन जो होंगे किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? दैट्स व्हाई दोस 3 जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडॉन जो है दे, उनको क्या बोलेंगे हम? दे आर नोन एज द स्टॉप कोडॉन। अब कोडॉन की बात कर रहे हैं, स्टॉप कोडॉन को कोड करने के लिए कोई कोड होगा,
राइट। स्टॉप कोडॉन 3 कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? यू, यग, यगा। बोलो कौन कौन से हैं 3 कोडॉन? स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? यू, यग, यगा। मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए ये सबकी। यू, यग, यगा। These are the three stop codon. कौन कौन से? यू, यग, यगा। ओके, so what is this यू, यग, यगा? AUG. हाँ, किसने बोला ये? वेरी गुड। यू, यग, यगा, इसको आपने याद कर लेना है। यू, when I say यू, A, यग, यू, A, G, यगा, UGA. Are you getting this? Uracil, adenine, adenine, uracil, adenine, guanosine, uracil, guanosine, adenine. इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं बोल रहा हूँ UAU, यग, UAG, and यगा, UGA. They do not code for any amino acid. ये जो genetic codon है, they are not going to code for any amino acid. Hence, इनको क्या बोलेंगे हम? They are known as stop codon. क्या है ये? What they are? They are stop codon. So इनका what is the function of stop codon? इनका function क्या होगा stop codon का? What will be the function of stop codon? The function will be, कोई बता सकता है मुझे? उसको चॉकलेट मिलेगी, जल्दी से बताओ। उधार रहेगी चॉकलेट। The function of stop codon is to stop the process of protein synthesis, is to stop the process of translation. Translation का जो process होगा उसको stop करने का काम करते हैं ये यू, यग, यगा, which are known as stop codon. It means they are not going to code for any amino acid. If they are not going to code for any amino acid, then polypeptide chain जो है नहीं बनेगी आगे। Polypeptide chain नहीं बनेगी, it means the translation will not take place. So U, yag, yaga is the stop codon. इसको याद रखना, ये आपने याद रखना है तीनों stop codons. Stop codons. This is the first point which I have. Right? Is it okay? Till here, is it okay? Yes, sir. Do you have any question, any doubt? Please ask me quickly. Yes, sir. Okay. Can I proceed further? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So second feature is the genetic code or the genetic codon. They are specific in nature. Specific, I have written in your NCERT, it is written unambiguous. Unambiguous or specific in nature. Means specific in nature means a specific type of genetic code or genetic codon, it will code for a specific type of amino acid के लिए code करेगा. One genetic codon code for one specific type of amino acid, that is known as specific or unambiguous इसको बोलते हैं. अच्छा, मेरे पास ये दे रखा है UAA. This triplet is being given. So how I should say that it is a genetic code or genetic codon? How I should come to know? UAA. मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोडॉन है? यस, UAA. This triplet is being given. My question is how I should come to know whether UAA is a genetic code or genetic codon? Yes, Kana Basti. Yes, sir. Yeah. Are you getting my question? Yes, sir. But yeah, tell me the answer, beta. Sir. Use little bit. Think. थोड़ा सोचोगे आपको आंसर आ जाएगा अपने आप. Sir, if uracil is present, then it will be. Yes, exactly. You are right. Because uracil is present, it means this triplet is present on the RNA molecule, and we are saying the triplet which is present on the RNA molecule, वो codon है. क्योंकि code will be coded in the form of codon, and the triplet of nitrogen bases which is present on the DNA is code. COD. So code will code in the form of codon. Are you getting this thing? So this is
because uracil is there, तो uracil से पता लग जाएगा कि uracil is there, uracil is present in the RNA molecule, so it is a genetic codon, तो genetic codon है ये, right? Simple, ये difficult नहीं है, बहुत simple है, okay? So the second feature we said that the genetic codon or genetic code, they are specific in nature. Specific को और क्या बोला हमने? They are unambiguous in nature. Unambiguous in nature means one genetic codon will code for one specific type of amino acid. For example, we said that AUG is going to code for, किसके लिए कोड करेगा? It is going to code for methionine in case of eukaryotic cell, and in case of the prokaryotic cell के अंदर क्या करेगा? It is going to code for N-formyl methionine. It is going to code for N-formyl methionine. Okay, Shivam is asking the question that if U is not there, like ACA, yeah, if U is not there, then we may say that either it is a genetic code or genetic codon, unless it is not specified नहीं किया गया होगा, तो हमें उसका पता नहीं लगेगा उसका, right? So if the question will come, then uracil के बेस पे हम identify कर सकते हैं, or either the statement should be given that whether it is a code or genetic codon. Shivam, is it okay? Shivam, Yes, sir. yeah. So Yes. question में specify होगा वैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर U से बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, either it will be specified, simple, no problem for that. So second feature, specific or unambiguous. Third feature, तीसरा feature देखिए क्या है, important है तीसरा feature, genetic codon और genetic code, they are degenerative in nature. कैसे हैं ये? Degenerative in nature. Now अब इसको समझिए आप, इन दोनों पॉइंट्स को, ये these two features are little bit, थोड़ा सा आपको confusion होगा. इसमें हमने कहा one genetic codon will code for one amino acid, एक amino acid के लिए कोड करेगा, ठीक है? For example, ये codon 1 है, ये codon 2 है, ये codon 3 है. I'm writing here, I'm writing codon only, मैं नाम नहीं, सीक्वेंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? Suppose this C1, C2 and C3, these are the three different types of genetic codon हैं, तीन different types के. हमने कहा कि they are specific means for C1 is coding for phenylalanine के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, amino acid के लिए. I'm writing here, hypothetical लिख रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए. phenylalanine के लिए कोड कर रहा हूँ. C2 may also code for phenylalanine, C3 भी कोड कर सकता है phenylalanine के लिए, ठीक है? That is the meaning degenerative. Degenerative means same amino acid may be produced by different types of genetic codons, they may code for same amino acid, ठीक है? Different types of genetic codon, एक टाइप, दूसरा, तीसरा टाइप, they may code for same type of amino acids. This is known as degenerative nature of genetic code or genetic codon. अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, these two points are different, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं ये, ठीक है? इसको थोड़ा समझिए और ध्यान, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको पता लगेगा. सेकंड फीचर में हमने कहा वन जेनेटिक कोडॉन विल कोड फॉर वन अमीनो एसिड. इट मींस हमने क्या कहा, जेनेटिक कोडॉन जो है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, और ये हमने क्या कहा, जेनेटिक कोडॉन दे आर अनएम्बिगुअस इन नेचर, ठीक है? इज इट ओके? ये ओके है ना भाई? एक C1 जेनेटिक कोडॉन है, वो phenylalanine के लिए कोड कर रहा है. क्या ये C1 जो है ये methionine के लिए कोड कर सकता है? नो. क्या ये C1 जो है ये कोड कर सकता है serine के लिए? नो. One genetic codon will code for only one amino acid. This feature is known as genetic codon. They are specific or they are unambiguous in nature. Clear? थर्ड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं, जेनेटिक कोडॉन दे आर डीजेनरेटिव इन नेचर, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई phenylalanine जो है इसके लिए हो सकता है कि कोई और जेनेटिक कोडॉन हो, वो दे में ऑल्सो कोड फॉर द सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेटिव. इसका मतलब हुआ डीजेनरेटिव. इज इट ओके? ये क्लियर है क्या? जब हम लोग स्टूडेंट थे ना तो हमें इसमें पता नहीं लगता था, हमें बहुत कंफ्यूज होते थे हम लोग इन दोनों फीचर्स के बीच में. जब हम आप जैसे थे हम लोग, तो ये दो फीचर क्लियर हुए.
Yes, sir. ठीक है। स्पेसिफिक और जो ये डिजेनरेटिव नेचर है थोड़ा अलग अलग है दोनों के दोनों, ठीक है। ओके, फोर्थ फीचर, वेरी सिंपल फीचर, दी जेनेटिक कोडॉन क्या कॉमनलेस। कॉमनलेस मींस, कॉमनलेस का मतलब क्या है, अगर जेनेटिक कोड है तो जो चेन बनेगी अमीनो एसिड की, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो कंटीन्यूअस चेन बनेंगे, इसमें ब्रेकेज नहीं होगा चेन के बीच में। तो दी जेनेटिक कोडॉन दे आर कॉमनलेस और दे आर पंक्चुएशन लेस or they are continuously, they will decode for their proteins, that's why they are continuous. Commerce का मतलब क्या हुआ, they are continuous in nature. Fifth one, they are universal in nature. जेनेटिक कोडॉन कैसे होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर हैं। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या हुआ, AUG मेरी बॉडी के अंदर कोड कर रहा है मिथ्योनाइन के लिए, तो सनी की बॉडी के अंदर भी मिथ्योनाइन के लिए कोड करेगा, काना के अंदर भी मिथ्योनाइन के लिए कोड करेगा, स्वस्तिका के अंदर भी मिथ्योनाइन के लिए कोड करेगा, ठीक है। और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर भी मिथ्योनाइन के लिए कोड कर रहा है। जैसे यूनिवर्सल का मतलब यही हुआ कि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में जो बना रहा है वही जो है अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में भी बनाएगा, विद फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसके जो जेनेटिक कोडॉन कोड होते हैं वहां पे एक्सेप्शन है, एंड फ्यू प्रोटोजोन्स के अंदर जो है एक्सेप्शन होती है। अदरवाइज दी जेनेटिक कोडॉन एंड जेनेटिक कोड दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, वो यूनिवर्सल है डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स के अंदर, राइट। दे आर कोडिंग फॉर सीराइन के लिए एक एनिमल ग्रुप के अंदर कोड कर रहे हैं, दे विल कोड इन प्लांट्स एंड ऑन इन इवन इन अदर ग्रुप्स में भी ऑलमोस्ट सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। Sixth feature is that the AUG, this is the AUG क्या है, जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोडॉन है, AUG कोडॉन है। कोडॉन है। AUG is having dual function, AUG का डुअल फंक्शन है, दो फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है AUG का, AUG is going to code for मिथ्योनाइन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, एंड सेकंड इज इट इज द इनिशिएटर कोडॉन। AUG क्या है, AUG इज इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन का मतलब क्या हुआ, इट विल स्टार्ट द प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने वाला जो पहला जेनेटिक कोडॉन होता है, जो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का प्रोटीन बनता है तो उस प्रोटीन का जो पहला अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होगा, मिथ्योनाइन होगा। उसको कोड करने वाला जेनेटिक कोडॉन कौन होगा, AUG होगा। So AUG will always going to start the process of translation. Process of translation को start करेगा AUG. So AUG is having dual function. Dual function है AUG के। Dual function क्या क्या है, एक function है बेटा कि AUG जो है that is going to synthesize, that is going to code for methionine। हमारे यूकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर मैंने कहा कि एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन कोड करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का होता है। एंड सेकंड फंक्शन इज इट इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज ये क्या है आपका, ये इनिशिएटर कोडॉन है। AUG के क्या है, ड्यूअल फंक्शन हो गए AUG के, राइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोडॉन के बारे में जो है ये ऑल अबाउट है। स्टूडेंट, हैव यू हर्ड अबाउट डॉक्टर हरगोविंद खुराना? आपने डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम सुना होगा? यस सर। सुना है, कहाँ सुना है, कोई बताएगा मुझे डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में? In your NCERT also this name has been given, but Dr. Hargobind Khurana, I think he did his graduation or post graduation from Punjab University Chandigarh, and later on he went to United States of America, वहाँ पे सेटल हो गए थे बाद में, और उनको शायद नोबेल प्राइज भी मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसी के साथ, इसका मुझे श्योर नहीं है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना इन NCERT इज गिवन। हरगोविंद खुराना जो थे, दे हैज डेवलप्ड द केमिकल मेथड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द RNA मॉलिक्यूल्स। उन्होंने RNA मॉलिक्यूल को केमिकली जो है उन्होंने सिंथेसाइज किया बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस को लेकर के, ही हैज सिंथेसाइज्ड द RNA मॉलिक्यूल को उन्होंने सिंथेसाइज किया था पहली बार, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का कंट्रीब्यूशन था ये। दिस नेम इज गिवन इन योर बुक। सो बाय इट इज रिलेटेड विद द जेनेटिक कोडॉन, क्योंकि उन्होंने जो न्यूक्लियोटाइड लिए वो डिजायरेबल न्यूक्लियोटाइड लिए, उनसे उन्होंने क्या किया, RNA बनाया। दूसरा जो एग्जांपल आपकी बुक में नाम दे रखा है, मार्शल नीरनबर्ग का नाम दे रखा होगा, मार्शल नीरनबर्ग। मार्शल नीरनबर्ग ने क्या किया, दे हैव आल्सो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड द प्रोटीन्स, उन्होंने भी प्रोटीन को सिंथेसाइज किया आर्टिफिशियली टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कोडॉन के नेचर को। और जो थर्ड जो नेम दे रखा है दैट इज ओकाया, दैट सिविरो ओकाया। सिविरो ओकाया ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है, फॉस्फोरिलेज एंजाइम,
फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प इन पॉलीमराइजिंग द आरएनए मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज करता है इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, यानी कि टेम्पलेट के बिना आरएनए मॉलिक्यूल को फॉस्फोरिलेज एंजाइम की हेल्प से सिंथेसाइज करवाया गया सवीरो ओकाया में। तो दीज आर द 3 साइंटिफिक नेम अलोंग विद द मार्शल नियरनबर्ग, जिन्होंने कहा था ट्रिपलेट नेचर जो था, उनके साथ ये 3 कंट्रीब्यूशन आपकी बुक में दे रखे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोडॉन एंड जेनेटिक कोड, राइट। सो वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास विद दिस। हम कंक्लूड करेंगे, जो असाइनमेंट हमने डिस्कस किया आज उसको प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। मैं रिवीजन असाइनमेंट आपको और आज दूंगा आपको, तो उनको भी आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। ओके, इज इट ओके गाइस? Yes. इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Okay, thank you very much. Thanks for joining. Sir, Thank you. Yes. सर जेनेटिक कोडॉन के बारे में तो आपने इतना सब बता दिया, सर जेनेटिक कोड बता दीजिए। किसके बारे तो में? जेनेटिक कोड के बारे में कुछ बता दीजिए। अरे जेनेटिक, दिस इज द जेनेटिक कोड ओनली वी हैव डिस्कस्ड। तो सर कोडॉन उसी के अंदर आएगा? Obviously, the DNA molecule nitrogen bases which are present on the DNA molecule nitrogen bases, they are the genetic code. Now genetic code जो है वो क्या, DNA क्या बनाएगा? RNA molecule. So RNA molecule के ऊपर क्या आ गया? इनका एक्सप्रेशन कोडॉन आ गया। कोडॉन क्या करेगा? अमीनो एसिड बनाएगा, अमीनो एसिड। So this is genetic code, genetic codon. हाँ सर, यही पूछना था। You are not getting the link. There is a link. Yeah. सर अब आ गया। हाँ, yes, yes. तो जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोडॉन, तो Thank you, sir. फीचर्स हैं ये। या ओके, थैंक यू वेरी मच।